Dear students of BTech first year mechanical branch, I am Dr. N. Prasai, Associate Professor of Mathematics, Engineering and Humanity. I welcome to you for our today revision class on Taylor's theorem for function of two variable problems. Vishal Parmar, Pius Kotwar, join with your roll numbers. Raj Mahavia, Gajendra Pawar, Ranjit Raghuvanshi, Devendra Devendra Dakar, Devendra Nagar, Sunil Prasaria, Tilok Jadov, very good morning to all of you. Very good afternoon to all of you. Yes, very good morning to all of you. Good morning, sir. देवेंद्र हो गया, पीयूष हो गया, रंजीत हो गया, सुनील, ऋषभ शुक्ला. Write your name in front of that your roll number in the chat box. It is essential for your taking attendance. अंकित चौहान, आयुष रिंगे, इंद्रजीत लस्कर. ज्वाइन करने के बाद चैट बॉक्स में अपना नाम ब्रैकेट में रोल नंबर जरूर मेंशन कर दीजिए. राहुल पाल, रुपेश पटेल, Done this. after 2 to 3 minutes I will start the session. Vishal Parihar, ज्वाइन करने के बाद अनम्यूट करिए. सौरभ परिहार, Raj Mahavia, again joining. Any technical issue to join your class? Why you are joined by 2 times? After 2 minutes, I will start the session. Because as per my feeling, I understand that some of you having doubt on Taylor's theorem of function of two variable for solving problems. That's why I recall this tool once again today. Then if time permits to be, then we start the next topics to next tomorrow class. Bhava Savli, Sartagur,
अंकित चौहान स्क्रीनशॉट लेके पार्टिसिपेंट का क्लास होने के बाद मुझे शेयर करोगे फॉर टेकिंग योर अटेंडेंस फ्रॉम दिस क्लास ऑफ जूम थ्रू जूम because in recording this participant is not to be recorded. Chat box is only recorded message, so that's why I insist you all every time ki whenever you join the class please mention your name in front of the name. You write your roll numbers. Shivam Gade. Anybody any doubt? Just after 1 minute I will start the session. And I want to talk to you one more important thing before start this topic. कुछ एक टास्क दिया था मैंने आपको, वो आपने कुछ 2-3 लोगों ने किया है, बाकी लोगों ने किया नहीं है, उसी के बारे में आज रिमाइंड करना चाह रहा हूं आपको. Okay guys, now today time of wedding just over. My dear students of BTech first year mechanical branch, I am Dr. Rohit Prasai, Associate Professor of Mathematics, Engineering Science Humanity Department at Chamil Devi Group of Institution Indore. I welcome to you again on our this ninth lecture, which is just based on the revision of how can you solve a problem of Taylor's theorem of function of two variables. Nilesh and Yashika. Why not avoiding the time of joining class before 5 minutes? Any problems to anybody? You just give me the answer of this question is simply sir network issue, network issue. नहीं, आपने अपने समय को पहचाना नहीं अभी भी, इतनी बार कहने के बाद, समझाने के बाद भी. ओके राइट. तो आपको मेरे को इस पर सवाल कराया था, जो उसको मैं फिर से एक बार दूसरे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको इस स्टेप से समझ में आ जाएगा. उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मैं पहले टास्क दिया था उसके बारे में रिकॉल करना चाहता हूं. ये पिछली स्लाइड्स थी, पिछली क्लासेस में अभी तक हमने कंप्लीट किया है. इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन पे अच्छे क्वेश्चन करने होंगे. जो भी क्वेश्चन बैंक में मैंने आपको दिए हैं या आपको जो बुक बताई है कि आप या तो डॉक्टर डी के जैन की एमन की बुक, नहीं तो डीसी अग्रवाल की एमन की बुक एज ए रेफरेंस के लिए लाइब्रेरी से ले आइए. कॉलेज की लाइब्रेरी में यदि लोकलाइट हो, यदि बाहर रहते हो तो वहाँ आसपास अपनी दुकान से सेकंड हैंड पेपर से बुक ले लीजिए. सॉफ्ट कॉपी से भी पढ़ सकते हो. क्लासरूम में आप लोग मेरे से स्क्रीनशॉट ले रहे हो, उसके थ्रू भी आप नोट से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको हजारों लाखों क्वेश्चन करने की तरकीब सिखाता है. ये मैथमेटिकल नया नया टूल्स आप सीख रहे हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं, सीखते रहेंगे हम लोग. हाँ. वो बात इंपॉर्टेंट ये थी कि आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट किया है, उसमें आपको जो ज्वाइन करना है, आपने भी जो भी ज्वाइन किया है, जो भी नंबर व्हाट्सएप आपने बताया है ऑफिशियली, जस्ट अपने नाम को उसमें डाल दीजिए, नाम को टाइप कर दीजिए, नाम से ज्वाइन कर लीजिए. मतलब
नाम को एडिट कर दीजिएगा। अभी केवल नंबर से आ रहा है ग्रुप में, आप नाम से कर नाम डाल दीजिए उसमें। अभी मेरे पास जो रिकॉर्ड में मैं देख रहा हूँ ग्रुप में, एक तो अंकित प्रजापत ने किया है, हर्ष वर्मा ने किया है, राहुल पवार ने किया है और राज महोबिया ने किया है। उसके बाद विशाल परिहार ने किया है। तो अभी 1 2 3 4 5 टोटल 40 स्टूडेंट है, उनमें से केवल 5 लोगों ने इस तरह का एडिट किया है। अब आपको मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आज आपका सारे बच्चों का कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई समस्या है कि आपको नाम डालने में, उसमें नाम क्या छिपाना चाहते हो? बोलो बेटे, कोई भी एक म्यूट करके मुझसे बात करो। नाम एडिट करने में कोई समस्या है आपको? बोलिए, कहिए। कहिए बेटे। नो सर। हाँ बोलो बेटे, किसी को व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना नाम डालने में कोई समस्या है? नो सर। फिर क्यों पीछे क्यों हट रहे हो? आगे बढ़ना है ना हमें। मैं आगे बढ़ने की चीजें सिखा रहा हूँ ना आपको, तो प्लीज करिए इसको। यस सर, जल्दी डाल से देंगे। जल्दी आज क्लास पूरा होने के ओके बाद सर। 11 बजे के बाद कंप्लीट करिए बेटे इस काम को। सबसे पहले अभी नहीं करिए, अभी तो मेरी तरफ ध्यान ओके दीजिए, सर। पढ़ाई की तरफ। जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, लर्निंग कर रहा हूँ आपके लिए। ओके, अब हम आ रहे हैं अपने पॉइंट की तरफ। ये था हमारे सामने क्वेश्चन है, एफ टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। टेन इनवर्स वाई बाय एक्स मतलब एक्स और वाई दो वेरिएबल का फंक्शन दिया हुआ है और हमें एक्स माइनस वन और वाई माइनस वन की पावर्स में हमें एक्सपाउंड करना है, मतलब इसका सीरीज निकालना है। टेन इनवर्स वाई बाय एक्स की सीरीज निकालना है, क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल का। और इस एग्जामिनर ने आपको साथ में नाम भी दिया हुआ है कि कौन सी मेथड लगाना है। आपको पहले नाम नहीं दे तो आप कैसे समझेंगे? उसके लिए मैंने आपको पहले बताया था, चूंकि x माइनस ए और y माइनस बी की पावर्स में है, इसका मतलब समझ जाइए कि इट इज अंडरस्टूड है कि आपको टेलर्स थ्योरम ही लगाना है। अब रही बात टर्म्स की कि कितनी टर्म्स हमें लिखना है, सेकंड टर्म तक करना है कि थर्ड टर्म तक करना है, वो आपको यहाँ पर एग्जामिनर देता है। यदि नहीं देगा तो 3 टर्म तक, थर्ड डिग्री टर्म तक आपको जरूर करना है क्वेश्चन में। ये जैसे कि मैं आपको पिछली स्लाइड पे जाऊं, जो आपको मैंने ये जो टेलर्स के फॉर्मूले बताए हैं वो 3 डिग्री टर्म्स तक ही बताए। बस अधिक से अधिक 3 डिग्री टर्म तक ही हमें कैलकुलेशन बताना है, उससे हमारा काम हो जाता है। उसके अलावा कुछ करने की हमें उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। डॉट 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 कर दीजिएगा। अब आपके सामने फंक्शन इस तरह का, जैसे इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस तरह का कोई भी फंक्शन एग्जाम में दिया जा सकता है। एल्जेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, एक्स प्लस वाई माइनस वन, या लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, इस तरह का कोई भी एक्स वाई का फंक्शन दिया हो सकता है ना आपको, और कोई भी पावर्स में पूछा जा सकता है। यहाँ पर वन वन कॉमन लिया हुआ है मैंने, अलग अलग भी हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ा, 2 बार जरूर पढ़िए। एक पहली बार में पूरा रीडिंग करेंगे और दूसरी बार जब रीडिंग करें तो कुछ शब्दों को लेकर रीडिंग करें। एक्सप्लेन द एक्सपांशन ऑफ टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, इतने शब्दों को एक साथ लीजिए और जब ये शब्द का मीनिंग समझ में आ जाए तो फिर आगे बढ़िए। इन पावर्स ऑफ, जैसे आपने इन 1 2 3 4 5 शब्द एक साथ लिए, तो जो लास्ट शब्द होगा वो आपको ये बता देगा कि भाई आपका जो फंक्शन है वो कौन सा है, वन वेरिएबल का है कि टू वेरिएबल का है। जो आपका ये शब्द होगा 1 2 3 4 5वां शब्द जो है, ये आपको बता देगा कि ये कितने वेरिएबल का फंक्शन दिया हुआ है। बताओ कितने वेरिएबल का है? 2 वेरिएबल का है, तो इसलिए 2 वेरिएबल का टेलर्स थ्योरम लगेगा बेटे। यदि यहाँ पर केवल x होता है या केवल y होता तो वन वेरिएबल का टेलर थ्योरम आप लगाते। वहां पर केवल एक ही वेरिएबल रहता है तो एक ही पावर में एक्सपांशन होता है x माइनस ए में। यहाँ पर x माइनस ए के साथ y माइनस बी में है। तो वही गाइस, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पहली बार पूरा पढ़ा, फिर दूसरी बार पढ़ा, फिर इसके बाद दूसरी बार पढ़ते समय हमने कुछ शब्दों को साथ में लेके पढ़ा। एक्सप्लेन द एक्सपांशन ऑफ टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट शब्द ले रहे हैं, इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस वन एंड वाई माइनस वन। बस यहाँ पे रुक जाओ, इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस वन एंड वाई माइनस वन।
इसका मतलब इतनी बात समझ में आई, इतनी बात पढ़ी आपने, तो आपको दिमाग में ये रीजनिंग होने लगेगी, इस बात का चिंतन होने लगेगा, अपने आप दिमाग में रिकॉल होने लगेगा कि यहाँ पर ये x माइनस ए और y माइनस बी की पावर्स में एक्सपेंशन पूछ रहा है। इसके लिए हमारे पास टेलर्स का मेथड है। और इसके बाद जब आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन में मेथड दी है टेलर्स तो ठीक है, जब नहीं दिए हो तो आपको इस तरह से पहचानना है। और फिर क्या रही बात टर्म्स की, कितने डिग्री टर्म तक जाना है हमें, वो यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड डिग्री टर्म तक। तो हम एक तरह से इनको शब्द बाय शब्द पढ़ने के बाद हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये रहा सभी की नजर के सामने कि वी नो दैट बाय टेलर्स कंटेनिंग सेकंड डिग्री टर्म्स फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ ए बी प्लस, ये दूसरी टर्म है। फिर आपको तीसरी टर्म बताई थी। फिर इसके बाद जैसे ये स्टेप पूरी होती है उसके बाद अपन ये देखेंगे कि हमें किसकी पावर्स में एक्सपांशन निकालना है। तो उसके लिए हमें ए और बी की वैल्यू निकालना होती है। तो ए की और बी की वैल्यू निकालेगी, इसको इसके साथ कंपेयर करो। एक्स माइनस ए, एक्स माइनस वन को एक्स माइनस ए से कंपेयर करो तो ए की वैल्यू 1 मिलेगी। और वाई माइनस में जो भी दिया उसमें वो जो है बी जो होगा वो आपको बी की वैल्यू देगा, वाई के साथ जो होगा वो बी होगा। तो यहाँ पर बी की वैल्यू बने हैं। क्वेश्चन में एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पर x प्लस वन लिख सकता है कि इन पावर्स ऑफ x प्लस वन एंड y माइनस वन। इसका मतलब समझ जाना, क्योंकि माइनस में हमारा फॉर्मूला होता है इसलिए अपन प्लस को माइनस में कैसे लिख सकते हैं। अरे प्लस को माइनस कैसे लिख सकते हैं, कोई भी एक बताओ। राहुल पवार, विशाल परिहार, बताओ बेटे। प्लस में लिखा है, यदि x प्लस वन लिखा है तो उसको x माइनस वन कैसे लिखेंगे। औरेली बताओ मेरे से, कोई भी एक बोलो बेटे। बोलिए, माइक खुला हुआ है, बंद नहीं किया मैंने, म्यूट करके मुझसे बात करो बेटा। देवेंद्र, आयुष रिंगे, कहा है सभी लोग। माइक बैंड कैसे हो गया, एक मिनट रुको बेटा, तो चालू है, एक मिनट रुको बेटा। नो पार्टिसिपेंट ऑन में, हाँ अब बोलिए। सर रिक्वेस्ट टू में 0 मान लेंगे। नहीं, मैं आपको ये बोलूं बेटा कि x प्लस वन दिया हो, सर माइनस का इंटू कर देंगे। हाँ यदि x प्लस वन की पावर्स में होता है, यहाँ पर x माइनस वन की जगह x प्लस वन की पावर होती, तब उस केस में a की वैल्यू क्या होती है मैं जानना चाह रहा हूं बेटे। तो आप, मैं आपसे बोला था कि यदि यहाँ पर x प्लस वन है तो उसको तुम प्लस को कैसे माइनस में लिख सकते हो, माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर फिर तो माइनस का इंटू, माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर माइनस ऑफ वन, तो a की वैल्यू उस केस में हो जाएगी माइनस वन, तो a बराबर आपका माइनस वन हो जाएगा। तो आप ऐसा घबराना नहीं कि अपन ने, आपको मैंने फॉर्मूला माइनस का बताया और प्लस में कैसे लगाएगा, बिल्कुल इस तरह से आपको उसको इंडिटेन करना है। तो जो आपको एक्सपेंशन पूछा है जिसकी पावर में यदि प्लस लिखा है तो उसको माइनस में कन्वर्ट करो, और कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूले में कुछ भी डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं, केवल यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली ए की वैल्यू बदल जाएगी। तो इस तरह से हमने कुछ बदल बदल के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिए हैं, सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो ये कैंपस में नोट्स और क्वेश्चन बैंक दिए, यूनिट वाइज करते जाओ, टॉपिक के साथ साथ करते जाओ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक साथ करने आखिरी में बैठोगे तो कुछ समझ नहीं पड़ेगा। पढ़ाई जो भी लर्निंग होती है वो टाइम के साथ होती है, डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। ये मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ, अभी फिर से बार बार यही बात दोहराता रहूंगा। अब आ रहे हैं हम लोग इस केस में, हम लोग a की वैल्यू 1 रखेंगे, b की वैल्यू 1 रख के, सभी लोग रखिए इसमें। all of you substitute the value of a equal to 1 and b equal to 1 in this expansion. Then you will see in the next step, in the next slide, ये आपके सामने मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल f of x y equal to f a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, 1 upon factorial 1, x minus 1 fx of 1 1, y minus 1 fy of 1 1। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपकी सेकंड डिग्री की टर्म आ रही है x minus 1 का होल स्क्वायर fxx of 1 1, 2 of x minus 1 y minus 1 fxy 1 1।
प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ ऑफ y बाय ऑफ 1 1। इस तरह से आपका ये बेसिक फॉर्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाता है। अब आपको इसमें राइट हैंड साइड में लेफ्ट साइड वाला तो नो ने आपको वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स वाई क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स y बाय x। तो उसको लिखो। नाउ वी विल फाइंड ऑल देयर वैल्यूज। इन सभी वैल्यू को निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, वो है tan इनवर्स y बाय x, जिसको आप एक नंबर डाल देंगे। और उसके बाद फिर राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे सभी लोग। राइट हैंड साइड में जो पहली टर्म है एफ ऑफ 1 1 की है, तो पहले इस टर्म की वैल्यू निकालिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ 1 1 की वैल्यू? ये क्वेश्चन कोई भी छोटा सा क्लास का बच्चा भी बता सकता है। एफ ऑफ 1 1 की वैल्यू कैसे, हाउ कैन यू कैलकुलेट? यदि एफ ऑफ एक्स वाई ये दे रखा है और एफ ऑफ 1 1 निकाला है तो हमें क्या करना होगा? देवेंद्र, कोई भी एक मुझे बता सकता है इस क्वेश्चन को का आंसर? क्या करना होगा बेटे एफ ऑफ 1 1 की वैल्यू निकालना है तो? विशाल परियार भी बता, बोलिए कोई भी एक जना, उससे बात करिए, बोलिए जल्दी से। देवन कहिए बेटे, तुम क्वेश्चन हैंड रेस कर रहे हो, बताओ तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो? माइक अनम्यूट हुआ ही नहीं है, बार बार करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए सर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन नहीं बेटे, सर भाई को ए मान लेंगे सर भाई एक्स की वैल्यू ए रखेंगे 1 और y की जगह 1 रखेंगे। दोनों की ए और ए की वैल्यू 1 है ना आपको। एक्स की जगह 1 y की जगह 1 रखेंगे ना। सबसे पहले पहली टर्म की वैल्यू निकालेंगे बेटे, फिर उसके बाद अपन इसका पार्शियल डिफरेंस। सर x की जगह 1 और y की जगह भी 1 रखेंगे। हाँ, x की जगह भी 1 और y की जगह भी 1 रखेंगे ना बेटे। f ऑफ 1 1 यस सर, यस। बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। tan इनवर्स इक्वल f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आपके पास दी हुई है tan इनवर्स y बाय x। तो आपको वैल्यू पहले सबसे पहले पहली टर्म की वैल्यू निकालना पड़ेगी ना, फिर अपन दूसरी टर्म की तरफ जाएंगे, फिर तीसरी टर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसे स्टेप बाय स्टेप, इट इज एन स्टेप प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि सब एक साथ कर लेंगे। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे कि नहीं। एक स्टेप प्रोसेस होती है। जैसे आपको कहीं लेडर से पहली मंजिल से आखिरी मंजिल पर, सबसे ऊपर टॉप की मंजिल पर चढ़ना है, तो कैसे चढ़ेंगे आप? सर सीढ़ियों से मंजिल, फिर थर्ड मंजिल, फिर सर पहले पहली मंजिल चढ़ेंगे, फिर दूसरी मंजिल चढ़ेंगे, फिर तीसरी मंजिल चढ़ेंगे। मतलब एक स्टेप प्रोसेस होती है कि नहीं, उसके बाद एक वहां से स्टेप से, उसी तरह से। यस सर। तो करिए, लिखिए, नेक्स्ट कैलकुलेशन करिए। ये रहा आपके सामने कैलकुलेशन। f11 की वैल्यू निकालना, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 रखना है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? सभी को मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया, फाउंडेशन क्लास में हमने पीपीटी शेयर की है। सर पाई बाय 4 4 सर। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई बाय 4 होती है। tan इनवर्स 1 मतलब 10 में 1 कब होता है? 45 डिग्री का मान होता है। तो 45 डिग्री को रेडियन में बदल दिया अपन ने, पाई बाय 4 लिखते हैं। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा बेटे? f ऑफ x का कैलकुलेशन करना है। f(x) ऑफ 1 1, पहले सबसे पहले अपन को fx xx निकालना पड़ेगा। मतलब f को इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। तो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल y आपको कांस्टेंट लेना होगा। लिखिए, इसी के लिए मैंने लाइन लिख दी आपके लिए। Differentiate one partially with respect to x by keeping other independent variable y as constant। जो लोग कॉपी में नोट करें वो कॉपी में नोट करते जाएं, और जो स्क्रीनशॉट लेंगे वो पूरा स्लाइड पूरे होने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ाई कर सकते हैं। और क्लास होने के बाद आपको मैथ्स की कॉपी बनाते जाना है और लिखते जाना है डेली बेसिस पे, रिवीजन भी करते जाना है। ओके गाइस, इसमें कोई शक है किसी को इस स्टेप को समझने में? इसके बाद किसी को कोई समस्या है? बड़े आगे की तरफ। यस सर। तो टाइम तेजी से बढ़ रहा है आगे। हमारी स्पीड बहुत स्लो है, आपकी स्पीड बहुत स्लो है बेटा।
टाइम हमको धोखा दे देगा, इसलिए अपने को टाइम को पकड़ना है, इसलिए स्पीड बढ़ाना होगी। इसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना पड़ेगा। बहुत थोड़ा सा टॉपिक्स पढ़ाया जाता है आपको हर दिन, बस का इतना सा छोटा सा काम बता रहा हूँ कि आप उसका रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते जाओ, और कुछ नहीं करना, बस इतना सा काम करना है। पढ़ाई से जुड़े हैं तो पढ़ाई करना पड़ेगी। तो देखिए भाई, हम आपको फिर से समझा रहे हैं, एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में लिख दिया था मैंने ओरली, इसको अपन मैथमेटिकल सिंबल में इस तरह से लिखते हैं, एफ एक्स के सफिक्स में एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ पढ़ते कैसे हैं, एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई को कांस्टेंट मानते हुए। इसलिए मैंने ये स्टेप को डिटेल आपके लिए लिखी है और रिवाइज कर रहा हूं, ताकि आप लोग जो लोग नहीं समझ पाए पिछली क्लास में वो समझ सके इस बात को। तो देखिए फिर से डिफरेंशिएशन बता रहा हूं जो पिछली बार बताया था। पहले tan इनवर्स का करेंगे। सबसे पहले फंक्शन कौन सा है, tan इनवर्स है। तो इस पूरे को चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो पूरे को x मान लो, पूरे को दिमाग में x मान लो। तो क्या होता है tan इनवर्स x का, 1 अपन में 1 प्लस वन एक्स अपॉन x स्क्वायर होता है। तो आपका वो क्वेश्चन का आंसर देने के बाद अनम्यूट करिए खुद, क्योंकि बार बार मैं उधर पे वही पॉइंट पे जाऊंगा तो फिर टाइम हमारा दूसरी चीजों में वेस्ट होता रहेगा बेटे। हम हमारे जो बात कहना चाहते हैं उसको पूरा कवर नहीं कर पाएंगे टाइम में, इसलिए टाइम लिमिटेशन पे ध्यान दीजिए और थोड़ा सा कुछ मैनर्स है वो सीख लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस का होता है जो, ठीक है। हर बार जब भी मैं बोलूं तो आप आंसर देते हो, कोई भी व्यक्ति यदि आंसर देता है तो वो उसके बाद अनम्यूट करेगा अपने माइक को, फिर मेरी तरफ ध्यान देगा इस चीज को, ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो बेटे। हाँ जी, तो पहले tan इनवर्स का x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह आपके पास जो दिया हुआ है वो y बाय एक्स है, तो करो दोनों का स्क्वायर, क्या होगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद अंदर वाले फंक्शन का भी होगा, क्योंकि ये इसमें दो फंक्शन मिक्स है, दो क्या तीन फंक्शन का मिक्सचर है, ठीक है। तो पहले tan इनवर्स है, फिर y बाय एक्स है, और फिर x है, 1 बाय एक्स है, मींस सिंपली x है, ठीक है। तो y बाय एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, y को कांस्टेंट मानना, मतलब दिमाग में y को a मान लीजिए। तो a बाय एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे होता है, क्या होता है a बाय एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। कैसे आता है, x की पावर n का रूल क्या होता है आपका डिफरेंशिएशन निकालने का, पावर नीचे उतरती है तो यहाँ पर पावर आएगी -1 पावर नीचे उतरेगी, और फिर पावर में से एक कम करते हैं। डिफरेंशिएशन करते समय पावर को घटाते हैं और इंटीग्रेशन करते समय पावर में एक जोड़ते हैं। ये असूल होता है ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, तो वही अप्लाई कर रहा हूं बेटे। तो ये हो जाएगा आपका -y अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटू 1। और फिर इसके बाद अब आप इसको जरा एलसीएम लीजिए डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए, इस पूरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो जो एक्स स्क्वायर नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर अपन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इंटू में माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, न्यूमरेटर में माइनस वाई न्यूमरेटर में बचेगा और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, जो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। यदि आप x के रिस्पेक्ट में समझ गए तो आपको y के रिस्पेक्ट में भी अपने आप समझ में जाएगा, और फिर इसको दोबारा x के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्लियर है स्टेप, आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यस सर। तो अभी आगे बढ़ने के पहले हमें f(x) ऑफ 1 की वैल्यू भी निकालना है गाइस, ये बात भूलना नहीं है, ये आपने को भूलना नहीं है कि अपने को साथ साथ में ये जो डेरिवेटिव निकालने का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये वैल्यू निकालनी थी हमें, f(x) ऑफ 1 निकालना था। तो आप कुछ नहीं करना है आपको इसमें बेटे, आप सभी को इसमें x की जगह 1 और y की जगह 1 रख दीजिए। रखिए इसमें -1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो -1/2। ये आ गया आपका सेकेंड टर्म जो एक्सपांशन की उसमें उसकी पहली टर्म की वैल्यू मिल गई आपको। x -1 में कुछ नहीं करना, ऑलरेडी रख ही दिया है अपन को। अब टाइम अपडेट कर रहा हूं 10 मिनट के लिए, जुड़े रहिए मेरे से, बाहर नहीं जाइए।
जो काम बोले वो जरूर कर लेना आज के दिन में। व्हाट्सएप को अपने नाम से अपडेट कर लेना। अब आ रहे हम लोग इसका रिवर्स प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं। रिवर्स सिमिलरली डिफरेंशिएट वन पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू y बाय कीपिंग अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एज कांस्टेंट। जैसे अपन ने x के रिस्पेक्ट में किया था तो y कांस्टेंट लिया था, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट लेंगे। दिमाग में अब आप क्या करेंगे, x की जगह ये दिमाग में रखेंगे और y की जगह y ही रहने देंगे। y चूंकि वेरिएबल है, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने में पहले 10 का तो एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स x का, tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन एज इट इज आएगा 1/1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। और फिर इसके बाद y बाय x का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, y का y के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 1/x इंटू 1। और फिर इसको उसी तरह से सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है। जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आता है मैथमेटिक्स में तो कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं और फिर जो डिनोमिनेटर में रैशनल फंक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है सॉल्व होने पर। जो डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा वो ऊपर चढ़ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अब इंटू में 1/x, इसको मल्टीप्लाई करने पर 1/x आएगा। तो 2x में से एक x कट गया तो ऊपर क्या बचेगा, एक x, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको रिजल्ट नंबर 3 इसलिए डालना है क्योंकि हमें और डिफरेंशिएट करना है। बस इसी प्रोसेस से हम और आगे बढ़ते हैं और उसके पहले हम एफ वाई ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं। रखो इसमें भी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। Now differentiate number 2 again partial with respect to x by keeping other independent variable y as constant। क्योंकि अभी हमारे पास टेलर्स में, अभी तक हमारे पास टेलर्स में जो वैल्यू आई है वो सेकंड टर्म तक आई है एक्सपांशन की। पिछली स्लाइड के ऊपर जाते हैं। अभी तक जो हमने कैलकुलेशन किया वो यहां तक किया है, ये दोनों कैलकुलेट किए। अब हमें यह कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, एफ एक्सेस का मतलब आपको बताया था मैंने, इसका मतलब होता है सेकंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ को 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आप एक बार कर चुके हो, ये रहा आपके सामने इक्वेशन नंबर 2। इसमें जो जो टूल्स आपने अडॉप्ट किया है डिफरेंशिएशन का, बस उसी को रिपीट करिए। अब आपके पास ये फंक्शन नहीं होगा, अब आपके पास जो फंक्शन है वो ये है। इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे, जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y कांस्टेंट होता है, तो न्यूमरेटर वाला फंक्शन कांस्टेंट है और लेकिन डिनोमिनेटर कांस्टेंट नहीं हुआ। तो पहले अपन पावर का करेंगे, तो पावर का करेंगे और फिर अंदर वाले बेस का करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 0, तो आपका आंसर आएगा माइनस ऑफ 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में लिख के बताया है, सॉल्व करके बता रहा हूं। ये रहा गाइस आपके सामने, ये आपका वैल्यू आएगा माइनस, पहले से माइनस एक और आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2xy न्यूमरेटर में बचेगा और डिनोमिनेटर में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर इसकी वैल्यू 1 1 पे निकाल लीजिए। फिर से इसमें x की जगह 1, y की जगह 1 रखना है क्योंकि a और b थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। कॉन्स्टेंट मतलब सेम रहना। फिर इसके बाद अपन एफ एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। एफ एक्स वाई की वैल्यू निकालने का मतलब है जो आपका एफ एक्स निकला हुआ है ना, उसी को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो। तो एफ एक्स जो निकला हुआ है उसको अपन ने इक्वेशन 2 बोला हुआ है, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ नाउ डिफरेंशिएट 2 पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y बाय कीपिंग अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एज कांस्टेंट। इसलिए आप लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगेगा। कुछ लोग करते आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए सभी को यही इंसिस्ट करूंगा, रिवीजन करिए। ओके गाइस, तो जब अपन x के रिस्पेक्ट में निकाला था, फिर इसको अपन ने y के रिस्पेक्ट में किया, तो अब जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट मानेंगे। फिर से वही हम लोग इसमें डिवीजन का रूल लगेगा। आते हैं फिर से उस स्टेप की तरफ। क्या है इक्वेशन 2 को फिर से बताता हूं आपको। ये रहा आपके पास एक्सप्रेशन 2। आप y के रिस्पेक्ट में इसको करने में इंटरेस्टेड हैं, तो ऊपर एक y है, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब इट इज अ रेशियो ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शन ऑफ y। जब 2 अलग अलग फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रहते हैं तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस रूल से होता है, कौन सा रूल लगता है डिफरेंशिएशन का,
डिवीजन रूल लगता है ना, तो डिवीजन रूल क्या बोलता है डिफरेंशिएशन का, पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करो, अंडरलाइन करो, फिर न्यूमरेटर का पहले करो, फिर इनटू डिनोमिनेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर। इसी को देखते हुए ये आपके सामने मैंने कैलकुलेशन किया है। तो न्यूमरेटर है y है तो y का y के रिस्पेक्ट में 1 हुआ इनटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर में y एज इट इज, फिर डिनोमिनेटर के किया x कांस्टेंट होने से तो इस टर्म का 0 या 0 प्लस 2y तो सिंपली 2y और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये मिल जाएगा और फिर इसमें 1 1 रख दोगे तो 0 मिल जाएगा। हुआ क्लियर सभी को? लास्ट स्टेप में नेक्स्ट स्लाइड में कोई समस्या है इसमें? मेरे को तो नहीं आ रही। नो सर। बोलो बेटे, किस बात में नो है बेटा बताओ, बोलो बेटा। पूरा रूल समझाया तुमको मैंने, एफ एक्स आपका ऑलरेडी है रिजल्ट, उसको वाई के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया है। जिस समय जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो वेरी कर रहता है और दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट लिया जाता है। तो जो हमारा डिफरेंशिएशन का डिवीजन का रूल होता है उसी को यहाँ पर लगाया बेटे। तो न्यूमरेटर में y था उसका 1y इंटू डिनोमिनेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर फंक्शन एज इट इज इंटू डिनोमिनेटर 2y और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और फिर इसको से ओपन किया है ब्रैकेट को, तो ये आ रहा है माइनस 2y स्क्वायर, फिर आ रहा है आपका y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर और x स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बच रहा है, लेकिन बाहर माइनस होने से इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया है ताकि ये आपका बाहर का माइनस कट जाए। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसलिए पहले टर्म y स्क्वायर की जाएगी फिर x स्क्वायर की जाएगी, फिर इसमें 1 1 रख दिया और कुछ नहीं किया है। अब इसके बाद अपन को एक और करना है टर्म्स एफ वाई वाई की निकालना है। तो एफ वाई वाई के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, एफ वाई वाई निकालना मतलब एफ वाई जो है उसको फिर से वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो उसके लिए हमारे पास 3 नंबर लिखा हुआ है, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके सामने रिजल्ट मिलेगा। और फिर इसमें आप 1,1 रख देंगे तो आपको ये फाइनल रिजल्ट इसका मिलेगा इस स्टेप का। और फिर इस तरह से ये सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू आपकी निकल जाती है, आप अपने फॉर्मूले में 1 में रख देते हैं एंड सॉन्ग। और भी हम इस तरह से कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब इसका और भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और भी आगे डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि वेरिएबल है ना तो ये कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल होगा। Now on putting all these values in equation number 1, ये आपके सामने आंसर मिलेगा टेलर्स थ्योरम का एक्सपेंशन x माइनस 1 और y माइनस 1 की पावर्स में। उसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। अब इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि सर x माइनस 1 का होल स्क्वायर सॉल्व करें, y माइनस 1 का होल स्क्वायर सॉल्व करें। जब आपके पास एग्जाम में टाइम हो तभी आपको इसके बाद इसको ओपन करना है, सिंप्लीफाई करना है, नहीं तो अदरवाइज आपको क्वेश्चन में आंसर नहीं दिया तो बस यहां तक करना है आंसर। इतना कैलकुलेशन इनफ एंड सफिशिएंट है। ठीक है गाइस? तो ये डिफरेंशिएशन और फिर से रिवाइज कर देता हूं, कुछ सेकंड का टाइम बचा है पीछे की तरफ जाके। कुछ लोगों को सरप्राइज लग रहा होगा जो आज पहली बार क्लास में दिख रहा है मेरे को एक स्टूडेंट। देखो बेटा ये एफ ऑफ एक्स था, अपने को कैलकुलेट करना है एफ ऑफ वाई से दोबारा, तो ये स्लाइड काम आएगी आपको। ये 3 नंबर एफ ऑफ वाई, ये था आपके पास एफ ऑफ वाई की वैल्यू, आप इसको वाई के रिस्पेक्ट में फिर से करना चाहते हैं तो एक्स को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो ये आपके पास इस केस में न्यूमरेटर जो है कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आप y के रिस्पेक्ट में कैसे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव निकालते थे 12th क्लास में, बिल्कुल उस तरह से निकालो बेटे, अपने आप आंसर मिल जाएगा तुमको। तो न्यूमरेटर वाला फंक्शन कांस्टेंट वो एज इट इज होगा, पहले इसमें डिनोमिनेटर का होगा तो पावर को ऊपर ले जाएंगे -1, फिर नीचे उतारेंगे तो -1 आ जाएगा पावर में, इसलिए इसकी पावर प्लस करके डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे और फिर आपका बेस का डिफरेंशिएशन होगा 0 + 2y। तो वही हमने आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है एक्सप्लेन करके, ये लिखा हुआ आपके सामने।